Namaskar friends, welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. Today we are celebrating the 169th anniversary of the Santhal Hul or the Santhal Rebellion. Today as in on June 30th we did it, and this particular class is premiering today. So the thing is that the Santhal Hul or the Santhal Rebellion was a rebellion against the colonial government. The colonial government for the Santhals had some symbols such as the landowners, the money lenders. These represented colonial structures to the Santhals. And the Santhals were not happy with these structures. So the Santhals rebelled, and it was nothing short of a bravery that they showed for many period of time, for a long period of time. They ensured that their sustenance and their rebellions gets acknowledged, which it did, and today we are talking about it. So Santhal Hul or the Santhal Rebellion started in 1855 with Siddho, Kanho, Chand and one brother and two more sisters. The Santhal Hul was actually a slap in the face of the colonial government. It all started one day when the Santhals from Birbhum and other related areas of Bangladesh in 1832 were displaced. They were promised that they are going to be given a particular land, and this particular land will belong to them, and on this particular land they could get agricultural things done. But the Santhal Pargana, which was also known as the Damaneko, was later on attacked by land grabbers. They did not get enough for their agriculture. वो एग्रीकल्चर करते तो थे, पर वो बेगारी या फिर बॉन्डेड लेबर बन के करते थे, जिसकी वजह से संथाल रेबेलियन पूरा शुरू हुआ. संथाल्स when they started their practices, they were hunter gatherers, and thereafter they became settled agriculturalists. 1832 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें प्रॉमिस किया कि आप यहाँ से चले जाइए, हम यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर करेंगे और फिर आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए हम एक लैंड एरिया देंगे, और उस एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चरल लैंड में आप परमानेंटली रहिए, वहाँ से जो भी आप प्रोड्यूस निकालेंगे उसको आप बेचिए, उससे आप पैसा कमाएंगे. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. लेटर ऑन उन्हें पहली बात तो डिस्प्लेस कर दिया. उसके बाद उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई, जैसे कि मनी लेंडर्स उन्हें एक्सेसिव लोन देके उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन लेने की कोशिश करते थे. जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रॉपर्ली बिकता नहीं था या प्रोडक्टिविटी लो रहती थी तो उनके लैंड को छीन लिया जाता था, जहाँ पे उन्हीं के लैंड पे उनको बेगारी करवाने की नौबत आ जाती थी, यानी कि यहाँ पे अपने ही लैंड को वो ग्रैब करा के उस पर बॉन्डेड लेबर बनते थे. एक समय आया जब संथाल्स को लगा दैट अब बहुत हो गया, और वहाँ पे कुछ हीरोज़ and many courageous women also arose from the Santhals. We are going to talk about that only. So Santhal Hul of 1855 it was actually a revolt against imperialism. What is imperialism? Imperialism means making a colony subservient for the needs of an empire. और यहाँ कौन है एम्पायर? यहाँ एम्पायर है द ब्रिटिश एम्पायर. इम्पीरियलिज्म में कोई रहने नहीं आता है, इंडिया में कोई परमानेंटली सेटल होने नहीं आया था. इंडिया वॉज सपोज टू बी अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स ओनली, एंड देयर आफ्टर अ मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स. तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया हर जगह के फॉरेस्टेड एरियाज़ को फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉर मिनरल एक्सट्रैक्शन क्लियर करने लगी, वहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स रह रही थी वो डिस्प्लेस होने लगी. शुरुआत में उन्हें प्रॉमिस किया गया कि आप डिस्प्लेस अगर आपको हम कर भी रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड एंड एरिया देंगे जहाँ पे आप परमानेंटली एग्रीकल्चरिस्ट बन के रहिएगा, आप भी कमा सकेंगे, हम भी कमा सकेंगे. तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो इशू था इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट था, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं. 4 भाइयों ने और 2 बहनों ने, कान्हो, चांद, भैरव और मुर्मू, अलॉन्ग विथ the Siddho, Kanho, Chand and Bhairav Murmu, along with their sisters Phulo and Jano, they started rebellion against the symbolism and against the representatives of the British culture.
दैट इज़ द मनी लेंडर्स एंड द लैंड ग्रैबर्स। संथाल हुल एक सिग्निफिकेंट रिवोल्ट था तब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और ऑपरेशन जो एलिट्स, लोकल एलिट्स कर रहे थे उनके अगेंस्ट। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट पेजेंट अपराइजिंग रहा है इंडिया में ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट भी था, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स के अगेंस्ट भी था और मनी लेंडर्स के अगेंस्ट भी था। In 1832, beg your pardon, संथाल परगना, which was the Damani-Ko in present day Jharkhand, it was said that जो भी संथाल बंगाल प्रेसिडेंसी से बीरभूम, मुर्शिदाबाद, भागलपुर से आए हैं वो संथाल परगना झारखंड में रहेंगे। बट लेटर ऑन उनको सेटलमेंट बोल के भी यहाँ पे कामियोटी और हरवाही जैसे बॉन्डेड लेबर्स कराए गए। जब उन्होंने जो भी लोन लिया था एग्रीकल्चर के लिए, जब वो पे नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लो प्रोड्यूस, यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर कामियोटी और हरवाही पूछा जाए क्या है तो बता दीजिएगा। उसकी वजह से संथाल कम्युनिटी में डिसकंटेंट आ गया। मुर्मू ब्रदर्स, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव, दे वर इंस्पायर्ड बाय द संथाल गॉड ठाकुर बोंगास डिविनेशन। उन्होंने कहा ठाकुर बोंगा हमारे साथ है। फाइनली दिस एंटायर सिचुएशन ऑफ द मनी लेंडर्स, द लैंड ग्रैबर्स, दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस, दिस इज गोइंग टू कम टू एन एंड. We just have to revolt against the British. And they led around 60,000 Santals in a rebellion against the East India Company. Challenges बहुत थे। संथाल्स के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, ना वेपनरी के, ना इनके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था, बट फिर भी इन्होंने नाको चने चबवा दिए थे ब्रिटिश को। डिस्पाइट ऑफ बीइंग inferior when it comes to infantry and the weapons, despite of not knowing anything properly about war, they stood against the most feared empire of that time. There was just one instance जहाँ लगा अब नहीं हो पा रहा है, enough is enough. Rebellion began with guerrilla tactics. What is guerrilla tactics? Guerrilla tactics means just hide in the forest, attack and then come back to the forest. So similarly guerrilla tactics आज भी बहुत सारे tribes करते हैं। इवन माओइस्ट में गेरिला टैक्टिक्स चलता है, ठीक है। इट लास्टेड नियरली फॉर अबाउट 6 months, मिड 1855 से अर्ली 1856 तक। नाउ ब्रिटिश, बिकॉज दिस वॉज अ वायलेंट रेबेलियन, ब्रिटिश हैड टू सेंड अ मैसेज कि हमारे अगेंस्ट जो वायलेंट रेबेलियन करेगा हम उसका क्या हाल करते हैं। सो ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विथ फोर्स विच लेड टू वाइड स्प्रेड डेविस्टेशन। 15,000 संथाल्स दे वर किल्ड, मेनी विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड. Siddha was actually hanged on August 9th and 1855. That was after that Kanho was done, so he met the same fate in February 1856, and that was the end of the rebellion. However, there is a legacy. For example, after that only proper revolt happened, the revolt of 1857, and for many years to come it was an inspiration in the hearts of the people that when we were not there, there were some people who stood against the most feared empire of that time, and those were the Santhals. Now what has happened, that the Santhal rebellion of 1855-56 remains a significant chapter today. Also, if we talk about what it led to the passing of the Santhal Pargana Tenancy Act of 1876, beg your pardon. Now this particular act was to ensure that the Adivasi area, which was designated as an Adivasi area, should not be transferred anywhere else. This was the major thing about that. So it was introduced by the British in 1876 in response of the rebellion of 1855-56 and thereafter 1857 as well for the revolt. Now according to that particular law, it aimed to protect the land rights of the Santhal community. कि अगर आपके land rights दमनी को में दिया गया है तो आप नॉन संथाल सेटलर्स वहाँ पे नहीं आ सकते, जिनको वो आउटसाइडर्स की नज़र से देखते थे। तो जो संथाल एरिया ऑफ लैंड था दमनी को में, वहाँ पे नॉन संथाल्स नहीं आके रह सकते थे। इसी के साथ इन्होंने जो आदिवासी लैंड्स थे प्रोहिबिट कर दिया कि इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता किसी और को, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो गांव का हो, किसी नॉन आदिवासी के हाथ में नहीं जाएगा। साफ साफ बोला गया इस लॉ में कि आदिवासी लैंड सिर्फ और सिर्फ जो भी कस्टमरी लॉज है, यानी कि जो संथाल कम्युनिटी में सदियों से होता चला आया है उसी के अकॉर्डिंग पास होगा, इसमें ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं करेगी। इट ऑल्सो सेफगार्ड्स कि वहाँ के लोग अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सकें, अपने खुद के हेड्स चूज़ कर सकें। इसके अलावा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 भी आया, ये भी ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। ये बिरसा मूवमेंट और जो ऑनगोइंग आदिवासी प्रोटेक्ट्स चल रहे थे वो चाहते थे कि सिमिलर टू एसपीटी एक्ट हमारे यहाँ भी लगे और यहाँ पे छोटा नागपुर रीजन जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में वहाँ पे भी हुआ।
इसने अलाउ किया कि लिमिटेड लैंड ट्रांसफ़र होने चाहिए, सेम कास्ट में होने चाहिए और कुछ जोग्राफिकल एरियाज़ में होने चाहिए। यहाँ पे अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देगा। ये कहा, इसने ये भी कहा छोटा नागपुर एक्ट ने कि सेल ऑफ आदिवासी और दलित लैंड्स नॉन आदिवासी और नॉन दलित्स को नहीं होने चाहिए। ये कम्युनिटी ओनरशिप के एक्नॉलेजमेंट को भी रखता है। इसके अलावा ये परमिट कर रहा था लैंड ट्रांसफ़र जो कि आदिवासी इंडिविजुअल्स जो सेम पुलिस स्टेशन में एरिया में हों और दलित्स जो कि सेम डिस्ट्रिक्ट में हों, उनके लिए इसने ट्रांसफ़र अलाउ किया था। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। ये रिफॉर्म आज के लिए हमें लगता है कि छोटा है, बट इफ़ वी गो बैक टू दैट टाइम, दिस रिफॉर्म वाज अ ह्यूज रिफॉर्म। जस्ट इमेजिन अ रेबेलियन could make an entire empire go on its knees and says that yes, we are not going to grab your land. This was something not very in the nature of the British Empire. बट जब इतने सारे रिवोल्ट्स आफ्टर रिवोल्ट्स होने लगे और हमने यहाँ पे ब्रिटिशर्स के रहने पे इतना बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया, उन्हें समझ में आया कि आप ट्रेडिशनल और कस्टमरी लॉज किसी का हनन आप नहीं कर सकते हैं, और वही हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्पैक्ट क्या हुआ, दोनों एक्ट आज भी पिविटल है। अगर हम बात करें सोशल इकोनॉमी ऑटोनॉमी की, तो इंडिया में इसको दिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, यहाँ जो स्टेट्स हैं ये ट्राइबल स्टेट्स हैं बिकॉज, तो यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाई गई है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है कि जो हेड्स होते हैं वहाँ के इलेक्टेड वहाँ के लोगों के द्वारा ही किए जाते हैं, और उनके जो कस्टम्स हैं, जो लॉज हैं, जो भी शादी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग होता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम में शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें एक और चीज़ की, दैट इज़ शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में इनके अलावा बाकी एरियाज़ अगर कोई स्पेशल स्टेटस रखते हैं तो उनके लिए भी क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में भी बात की है। पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट टू द ट्राइबल एरियाज़, इसको भी हम इनफैक्ट ये ट्राइबल रेबेलियंस का ही लेगेसी मान सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह से संथाल हुल वॉज अ वेरी important and decisive factor in ensuring that Indians remain free in the future, and I hope you will continue supporting us in a similar manner. अगर आपने अभी तक RS उत्कर्ष इंग्लिश के टेलीग्राम चैनल को नहीं अबाइड किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी हम यहाँ पढ़ाते, जो भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, whatever PDFs that we use over here is provided on that. Okay, so I hope you will do that. Thank you so much everyone and stay updated. Bye bye.